Hello guys, I'm Kumar K. In this particular video, we are going to discuss a very interesting coding question recently asked by Google in Google the Big Code Qualifier Challenge 2026. All the engineering college students were eligible to give this Google coding challenge, and if you perform good in this coding algorithmic DSA challenge by Google, you will get the opportunities for internships and full-time roles at Google. Okay. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. Coming to me, guys, I am Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and now I am spending most of my time in guiding and training lovely students like you, the people who are watching this video. So, guys, a very nice thing about this question is that this question, the same question I have taught 5 years ago. Okay, like you can see here, the student in the Jan mentoring group wrote that binary search question exactly same from the pro course are able to identify and solve within 15 minutes. Thank you for the best 851 hour course. Okay. सो बात ये हो गई है कि ये क्वेश्चन मैंने 5 साल पहले पढ़ाया था बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन केम 5 years अगो इन अ गूगल किक स्टार्ट राउंड और ये मैंने कोर्स में ऐड करके रखा था तो बच्चों को बहुत हेल्प हो गई इससे ठीक है सो गाइस गूगल इज वेरी पॉपुलर फॉर आस्किंग हार्ड एंड सीन ऐसे प्रॉब्लम्स इन देयर इंटरव्यू राउंड्स OA rounds and their coding challenges like CodeJam, Kickstart, and then now the Google Big Code Qualifier. So they basically want to test whether you can think and solve new engineering and coding problems on your own or not. So if you only depend on standard, easy, medium, lead code, GFG, DSA problems and standard DSA sheets, then you will not be able to crack these types of questions. These types of questions are very lovely. All they require is your creativity and problem solving skills. So let's try to, explore our problem solving side today. And let's see how can we think about this problem without any extra stress or worry. So the question says that a deep space communicator agency has placed and relay stations. ठीक है. गाइस बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी आपको दी गई है मैं आपको इजी में बता देता हूँ ये क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक इंक्रीजिंग एरे दे रखा है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 5 12 17 28 राइट तो इंक्रीजिंग एरे दे रखा है 1 5 7 12 17 28 तो ये जो बोल रहे जो मैक्स डिफरेंस है पॉसिबल है ना मैक्स डिफरेंस पॉसिबल क्या है मैक्स कंसेक्यूटिव डिफरेंस जो मैक्स कंसेक्यूटिव डिफरेंस हो सकता है आपको वो फाइंड आउट करना है ठीक है तो गाइज आपको एरे दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स आपको कंसेक्यूटिव डिफरेंस होगा तो निकालो सबका कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या होगा चेक करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए बेसिक कोडिंग नॉलेज प्रोग्रामिंग नॉलेज आनी चाहिए अगर आपको वो सब चीजें नहीं आती है तो आपको मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करना पड़ेगा जो टोटली फ्री है तो मैं प्री रिक्विजिट यहाँ पर गाइज एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लोग इस चैनल को शायद पहली बार देख रहे होंगे तो गाइज इतना आपको कोडिंग का मेरा फ्री कोर्स कर लेना चाहिए तो इससे आपको मेरी सारी वीडियोस समझ में आ जाएगी ठीक है और पढ़ाई करना आजकल बहुत जरूरी हो गया बिकॉज in 2026 the AI era companies really value your creativity skills and problem solving skills तो 1 5 12 17 28 दे रखा है राइट तो अब हमको ना कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 4 5 और 7 3 7 और 12 5 7 5 12 होता है राइट हाँ 12 और 17 में 5 डिफरेंस है इसमें 11 तो हमारा आंसर 11 आ रहा है ओके सो गाइस एक एरे दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने हर i, i+1 का डिफरेंस निकाल दिया मैक्सिमम डिफरेंस क्या आ रहा है 11 हमको ये मैक्सिमम डिफरेंस को मिनिमाइज करना है तो जनरली इसमें बाइनरी सर्च यूज होता है बट आप समझ चुके होंगे कि हमारा मैक्स आंसर आ रहा है 11 हमको इसको मिनिमाइज करना है मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि हम के सेपरेटर्स यूज कर सकते हैं के सेपरेटर्स यूज कर सकते हैं तो मैं आपको आपके आंखों के सामने ये 11 को 5 करके दिखाता हूं ठीक है हमको 11 दिख रहा है मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस इसको मैं 5 करके दिखाता हूं बाय यूजिंग के सेपरेटर्स हमारे पास 3 सेपरेटर है क्योंकि के की वैल्यू 3 दी गई है अगर आप लोग एकदम ध्यान से चेक करो तो सो के की वैल्यू 3 है क्वेश्चन में दिया है के का वैल्यू 3 ठीक है मैंने एक एग्जांपल टेस्ट केस लिया तो मैं सेपरेटर कहां पर डालूंगा मैं आपको दिखाता हूं ना आपको टेंशन मत लो मैं कहीं भी तीन जगह बीच में नंबर्स डाल सकता हूं ठीक है तो ये डिफरेंस कितना था 4 था ये 3 था ये 5 था ये भी 5 था राइट अब मैं क्या करूंगा ना 17 और 5 कितना होता है ओके मेरे पास तीन बैम्बूज है या 3 लकड़े हैं तो 17 और 5 कितना होता है 22 मैं 22 पे एक नया सेपरेटर डाल दिया मैंने ठीक है 22 पे डाल दिया और एक मैंने डाल दिया लेट्स से 27 पे सेपरेटर डाल दिया तो मेरे पास 3 सेपरेटर थे मैंने 2 यूज कर लिए उसमें से एक मैंने 22 पे डाल दिया एक मैंने 27 पे डाल दिया अब निकालो मैक्सिमम एडजेसेंट डिफरेंस ये 4 आ रहा है
ये 5 और 7, ये कितना आ रहा है 2। गाइज मैंने पहले शायद वीडियो में गलत लिख लिया था, बट आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, ठीक है। 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, शायद मैंने 5 लिख लिया हो पहले, सो या नहीं, अच्छा 7 है ही नहीं, 12 17 28। ओके ओके ओके, 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। 5 और 12 का डिफरेंस देख लेते हैं। 5 और 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 और 12 का डिफरेंस हमारा आ रहा है लेट्स से 7। तो 5 से 12 का डिफरेंस 7 है, हमको तो डिफरेंस कम करना है, तो एक सेपरेटर इधर भी डाल देते हैं, ठीक है। एक सेपरेटर में डाल देता हूँ 10 पे, ठीक है। 1 5 12 17 28, मेरे 3 सेपरेटर। डिफरेंस पे करंटली कितना है? इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 5 है, और इधर 11 है। तो इनका मैक्स क्या आ रहा है? 11। ये मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है, राइट। तो 3 जगह मैं कहीं भी खंबे डाल सकता हूं, तो चलो 2 जगह डाल के देखता हूं। पहले एक तो मैं डाल दूंगा 22 पे, एक में डाल दूंगा 10 पे, और एक में डाल दूंगा 27 पे। तो तीनों के तीनों यूज हो गए। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। 1 से 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। 5 से 10 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। 10 से 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। 12 से 17 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। 17 से 22 का 17 18 19 20 30, सॉरी 18 19 20, 5। और 22 से 27 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। 27 से 28 का 1। तो अभी न्यू डिफरेंसेस ये आ रहे हैं। तो इनमें से मैक्सिमम डिफरेंस क्या है? 5। तो गाइस पहले मैक्सिमम डिफरेंस 11 आ रहा था, अच्छे से बैम्बूज या वुड्स बीच में डाल के, सेपरेटर्स को बीच में डाल के हमने 11 से 5 कर लिया। सो गाइस होपफुली आप सबको क्वेश्चन क्लियर है कि हमको इंक्रीजिंग एरे दे रखा है, मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस हमने निकाली। अब हमको के सेपरेटर्स को इंसर्ट करना था। तो हमको ये ढूंढना है कि ऑप्टिमली मैक्सिमम के सेपरेटर्स को आप कहां कहां इंसर्ट कर सकते हो, कहां कहां इंसर्ट करना चाहिए, ताकि जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस आ रहा है ना, वो जितना हो सके उतना मिनिमम चले जाए। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। सो गाइस डायरेक्टली ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। हमको क्या चाहिए? हमको पता है कि इस चीज को मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस बोलते हैं, राइट। इस चीज को मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस बोलते हैं। ये नंबर है y1 y2 y3, ऐसे करते करते नंबर है। इसको मैक्सिमम, इसको डिफरेंस बोलते हैं, राइट। यही तो है डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, ऐसा डिस्टेंस चल रहा है, राइट। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस शुड बी मिनिमम। तो ये कब होगा? व्हेन ऑल दीज डिस्टेंसेस आर मिनिमम। ये डिस्टेंसेस इंडिविजुअली भी तो छोटी होनी चाहिए। ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव डिफरेंस एनालिसिस में हम ये लिखेंगे कि ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव डिफरेंस शुड बी, ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव डिफरेंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो मजा आ जाएगा गाइस, ठीक है। सो अभी अपन क्या ट्राई करेंगे ना, अपन डायरेक्टली ट्राई करेंगे कि हर कंसेक्यूटिव गैप को 1 या 1 से छोटा कर दो। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि आप क्या ट्राई करोगे? आप ट्राई करोगे कि जितने भी कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेस आ रहे हैं ना, dn-1 तक आएंगे, राइट। अगर n नंबर्स है तो n-1 डिस्टेंसेस होंगी। तो ये जितने भी कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस है ना, ये सारे के सारे हम लेस देन इक्वल टू 1 लाने की कोशिश करेंगे। समझे गाइस आपको? अगर ये सब लेस देन इक्वल टू 1 है तो इनका मैक्स भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो ट्राई करो ना कि मैक्सिमम 1 या 1 से कम आ सकता है क्या। तो 1 या 1 से मैक्स कम लाने के लिए सारे नंबर्स को 1 या 1 से कम लाना पड़ेगा। तो यही तो अपन ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करो कि हर कॉन्जिक्यूटिव गैप 1 या 1 से कम में हो जाए। तो चलो ट्राई करते हैं, यही टेस्ट केस लेते। 1 5 12 17 28, 1 5 12 17 28। अब गैप देखो कितना है गाइस। पहले ये वाले गैप को सॉल्व करते। गैप कितना आ रहा है? 4। नहीं, हमको तो सारा गैप लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए। ये गैप, हर गैप लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए हमको। तो लेस देन इक्वल टू 1 आपको गैप चाहिए, राइट। तो आपको कितने खंबे लगाने पड़ेंगे? कॉमन सेंस है ना। नंबर 2 पे खंबा लगाओगे, नंबर 3 पे भी लगाओगे, नंबर 4 पे भी लगाओगे। तो टोटल 3 खंबे लगाने पड़ रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। सबका डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 को लेस देन इक्वल टू 1 समझ लो आप, ठीक है। 5 से 12 में कितने खंबे लगाने पड़ेंगे? लाइक मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। 6 से लेके 11 तक खंबे लगाने पड़ेंगे। 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, 6 खंबे यहां पर, और यहां पर 13 14 15 16, 4 खंबे यहां पर, यहां पर 1 5 12 17 28 है, राइट। तो यहां पर कितने नंबर हुए? 18 19, 9 खंबे यहां पर।
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो 18 पे लेना है, इन सब पर हमने लगा दिया, राइट। ऐसा करते करते आप देख सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली 10 खंबे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिख देने दो 10। तो बेसिकली जितना भी डिस्टेंस है -1 लग रहा है। इसका डिस्टेंस पता 4 है, इसका डिस्टेंस कितना है? 12 - 5 कितना होता है? 7। हाँ सही है, 5 में से हाँ सही है। तो टोटल कितने खंबे लगे? 3 + 6 9, 9 और 4 9 4 13, 13 और 10 23 खंबे लगे। बट हमारे पास तो 3 ही खंबे है, तो ये चीज तो नहीं चल पाई। तो मतलब हम सारे कंसेक्यूटिव डिफरेंस को 1 या 1 से छोटा तो नहीं कर सकते। तो इफ इट डज नॉट वर्क, व्हाई डज नॉट वर्क? क्योंकि 23 सेपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। 23 सेपरेटर्स लग रहे हैं ना बिडू, ये नहीं चल पाया अपना। तो अब ऐसे ही हम एक का तो कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस ला नहीं पाए, चलो दो का कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस लाते हैं। चलो दो का लाते हैं, दो में इंटरेस्टिंग मजा आएगा। 1 5 12 17 18, 12 17 28। तो गाइस अब ध्यान से सुनो ना मेरी बात, लव यू ऑल गाइस, आप लोग बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये बीच में कौन से कोऑर्डिनेट्स है? 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, मुझे दो दो का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं बीच में सिर्फ एक खंबा डालूंगा तो भी चल जाएगा। सिर्फ एक खंबा डालूंगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है? 3 - 1 क्या होता है? 2। 3 - 5 क्या होता है? 2। तो सिर्फ एक खंबा डालना पड़ा। तो गाइस अगर ये नंबर x है और ये नंबर y है, तो फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज x एंड दिस इज y। x इज लेस देन y। हाउ मेनी सेपरेटर्स यू नीड टू पुट सच दैट द एडजेसेंट डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू 2? इसका आंसर मालूम है क्या होगा? पहले डिस्टेंस निकालो, कितना आता है? 5 - 1 क्या आता है? 5 - 1 क्या आता है? 4, राइट। 4 आता है, तो देखो ना टोटल 4 ही तो था। तो ये जो भी डिस्टेंस आ रही है ना, इसको जो तुमको डिफ चाहिए, हमको 2 का डिफरेंस इससे डिवाइड कर दो। 4/2 कितना होता है? 2 -1 कर दो, एक ही सेपरेटर की जरूरत है। फॉर्मूला क्या हो गया? ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय गोल, बस। तो डिफरेंस क्या है? 4। 4/2, यानी 2 के 2 एग्जैक्ट हिस्से बन रहे हैं। तो उन 2 के 2 एग्जैक्ट हिस्सों को सेपरेट करने के लिए एक चाहिए, तो 2 आया, -1 कर दो अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो। डिफरेंस डिवाइडेड बाय गोल इज द फॉर्मूला। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो ना, देखो ना कितना आ रहा है डिफरेंस। 12 - 5 7 होता है। तो ये 7 लेंथ का बंदा है, पर हम चाहते हैं कि ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कि हर पार्ट का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2 हो। तो मिनिमम कितने खंबे लगेंगे? मैथमेटिक्स है गाइस, बाइनरी सर्च प्लस मैथमेटिक्स। तो मिनिमम हमको लगेंगे, 7 का डिफरेंस है 7/2। तू मैंने बताया था ना, गोल बाय डिफरेंस कर लो अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो, और एग्जैक्टली डिविजिबल है तो गोल बाय डिफरेंस -1। 2 1 1 2 3 6, तो 3 खंबे लगेंगे। एक लगा देना 7 पे, फिर 7 के बाद 8 9 पे, देखो 2 का डिफरेंस मेंटेन रह रहा है, फिर 10 11 पे। तो देखो ना, 5 से 7 का 2 का डिफरेंस है, 7 से 9 का 2 का डिफरेंस, 9 से 11 2 का डिफरेंस, 11 से 12 1 का डिफरेंस। तो गाइस ऐसे करते करते टोटल खंबे निकाल लेंगे अपन। अब फॉर्मूला से खंबे निकालते सीधा। इधर एक खंबा लगा, 12 - 5 क्या होता है? 12 - 5 हमारा जनरली आता है 7। 7/2, 2 3 2 3 6, 3 खंबे। 17 - 12 कितना होता है? 5। 5/2 क्या आता है? 5/2, 2 2 2 4, 2 2 5, या रफ डिवीजन। 28 - 17 क्या आता है? 11 आता है। 11/2 क्या होता है? 5। 5 खंबे लगेंगे इधर। तो गाइस टोटल कितने खंबे हुए? 3 4 5 6 6 5 11। मैं इस टाइप से समझा रहा हूं कि बिगिनर को भी समझ आ जाए। 11 खंबे लगेंगे। तो अगर हमको सारा कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए तो 11 खंबे लगेंगे। बट क्वेश्चन में कितने खंबे दे रखे हैं? क्वेश्चन में अभी इस वाले केस में कितने खंबे लग रहे हैं? 3 4 5 6 6 5 11, 11 खंबे लग रहे हैं। पर कुछ इसमें 11 खंबे लग रहे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही खंबे दे रखे हैं, तो ये चलेगा ही नहीं गाइस। वैसे ही अगर आप ट्राई करोगे कि सारी कंसेक्यूटिव डिफरेंस को लेस देन इक्वल टू 3 बनाए, वो भी नहीं चलेगा। आप ट्राई करोगे सारे कंसेक्यूटिव डिफरेंस को 4 बनाओ, वो भी नहीं चलेगा। बट ये करोगे तो इट वर्क्स छांचड़। अगर आप एक एक कंसेक्यूटिव डिफरेंस को लेस देन इक्वल टू 5 बनाओ, तो गाइस चलो ट्राई करते हैं। 1 5 12 17 28, 1 5 12 17 28। अब ध्यान से सुनना, ये जो जितनी भी
एडजेसेंट डिफरेंसेस थी, आपने इन सबको लेस देन इक्वल टू 1 बनाने का ट्राई किया, नहीं चला। लेस देन इक्वल टू 2 ट्राई किया, नहीं चला। लेस देन इक्वल टू 3 ट्राई किया, नहीं चला। लेस देन इक्वल टू 4 ट्राई किया, नहीं चला। लेस देन इक्वल टू 5 चल गया। तो यही अपना आंसर है। मैं सारे एडजेसेंट डिफरेंसेस को लेस देन इक्वल टू 5 बना पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एडजेसेंट डिफरेंसेस है ये सारी की सारी लेस देन इक्वल टू 5 है। तो इनका मैक्स क्या आएगा? इनका मैक्स भी लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। तो कोई मुझे बोल सकता है कि सर आपको पता है कि मैक्स लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, तो मैक्स 4 भी तो आ सकता था, मैक्स 5 भी आ सकता था, 3 2 1 कुछ भी आ सकता था, बट आपने 5 को आंसर क्यों डाला? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि मैक्स ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस कैन बी 5 या 5 से कम हो सकता है, बट मैक्स लेस देन इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सारे नंबर्स जो डिफरेंसेस है वो 5 या 5 से कम आ सकते हैं, बट अगर ये जितने भी डिफरेंसेस आपको लोगे ये 4 या 4 से कम नहीं आ सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 या 4 से कम नहीं है बट 5 या 5 से कम हो है? वो 5 ही तो है। 5 इज द ओनली नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 5, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। इसलिए लीनियर वे में ट्राई कर रहा था। पहले मैं ट्राई कर, देख रहे हो कितना दिमाग लग रहा है, मजा आ रहा है ना। डीप इनटू इनसाइट्स इंट्यूशन लॉजिक बनाना पड़ता है। तो मैंने कोर्स में स्ट्रक्चर वाइज सिखाया है। कोर्स में ना इसके पहले मैंने 50-80 क्वेश्चन ऐसे करा के रखे थे, तो ये करते वक्त बच्चे को जनरली समझ आ रहा था। कोर्स ले लो, लाइव ट्रेनिंग ले लो, जो फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं सैटरडे संडे, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे, आप ज्वाइन कर लेना। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं चला, लेस देन इक्वल टू 2 3 4 नहीं चला, लेस देन इक्वल टू 5 चल गया। कैसे दिखाता हूं? ये डिफरेंस कितना है? 4 है। अरे तो एक भी खंबा नहीं लगेगा यहां पर। हमको मेक श्योर करना सारे डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कितना है? 12 माइनस 5 7, 7 बटा 5, एक खंबा लगेगा इधर। ये कितना है? 5, 5 बटा 5, 1 1 माइनस 1 0। वो फॉर्मूलास के नीटी हम देख लेंगे, एक भी खंबे की जरूरत नहीं है इधर। ये डिफरेंस कितनी आ रही है? 11। 11 को अपन को डिवाइड करना है ऐसे कि दोनों डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो अपन इसको डिवाइड कर लेंगे, पहला 5 का पार्ट, दूसरा 5 का पार्ट और बाद में 1 का पार्ट। तो सारी डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 5 है। कितने खंबे लगे करने में? 3, सॉरी 1 2 2 खंबे लगे। 11 बटा 5 देखो ना क्या आता है, 5 5 10 या 2 खंबे इधर लगे। टोटल कितने खंबे लग गए? 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, 3। 3 खंबों में सारी डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू 5। मतलब मैक्स भी आ रहा है लेस देन इक्वल टू 5, बट मैक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, ये सब फेल हो रहा था। ये सब फेल हो रहा था। मतलब मैक्स इक्वल टू 5 पॉसिबल है। एग्जैक्टली मैक्स इक्वल टू 5 पॉसिबल है। अब मैक्स इक्वल टू 5 पॉसिबल है, यही आपका आंसर। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेस देन इक्वल टू 6 हो सकता है क्या। ऑब्वियसली गाइस, अगर लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है तो लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब ही लेस देन इक्वल टू 5 होता है। मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। अब गाइस लीनियर सर्च सोल्यूशन इसका अपन देख लेते हैं। मैं आपको कोड दिखाता हूं। हाँ, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। आप एक चीज नोटिस करना, जब आप कम एकदम मिनिमम गैप ट्राई कर रहे थे, 1 से बेटर आंसर हो नहीं सकता, तो देख रहे हो 23 सेपरेटर लग रहा था। अब जब आप गैप को इंक्रीज करते हो तो सेपरेटर कम लग रहा है। अब 11 सेपरेटर लग रहा है। 3 करोगे और कम सेपरेटर, 4 करोगे और कम सेपरेटर, अरे 5 करोगे तो सिर्फ 3 सेपरेटर लग रहा है। फिर वैसे ही 6 पे चले जाओ, 7 पे चले जाओ। लाइक अगर आप 5 हमारा आंसर है, बट तो भी आपको टाइम पास करना है, तो आप मैक्स डिफरेंस 11 का ट्राई करो। 11 का ट्राई करोगे तो 0 सेपरेटर में काम हो जाएगा। 11 मतलब आप चाहते हो कि सारी की सारी कंसेक्यूटिव डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 11 हो। तो 1 5 1 5 12 17 28 सारी की सारी आपको ना 11 से छोटी करनी है। तो अरे ये ऑलरेडी लेस देन 11 है, 0 ऑलरेडी डिफरेंस लेस देन 11 है, लेस देन इक्वल टू 11, 0 0 0। तो बेसिकली जब आप ट्राई कर रहे थे लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर ना बहुत, इधर 11, इधर 23 सेपरेटर लग रहे थे, फिर 11 सेपरेटर लग रहे हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस है। जब लेस देन इक्वल टू 1 ट्राई करते हो तो एक डिफरेंस को तोड़ने के लिए एक डिस्टेंस पे ज्यादा सेपरेटर लगाने पड़ते हैं ना, इसलिए ज्यादा आ रहा है, समझे। और बड़े डिस्टेंस का गैप ट्राई करोगे तो कम सेपरेटर लगेगा वही डिस्टेंस को डिवाइड करने में। लेस देन इक्वल टू 5 में, तो लेस देन इक्वल टू 5 में क्या हो रहा था? सिर्फ 3 सेपरेटर लग रहे थे। तो क्या होगा ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, ब्रेकअप पॉइंट आप ले लो। हमको, हमारे पास कितने, हमारे पास के सेपरेटर है, अपने पास कितने हैं? के। अपना के क्या था? क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। तो जैसे आप ये नंबर घटाते जाओगे, कभी ना कभी आप के इक्वल टू 3 पे रीच कर जाओगे। इसी की जगह अगर के इक्वल टू से 11 दिया होता, के इक्वल टू 11 दिया होता, तो अपन 23 से नीचे आते 11 इधर ही मिल जाता कि हाँ लेस देन इक्वल टू 2 अचीव हो सकता है 11 में। तो के कितना भी दिया हो, अरे के 0 भी दिया हो तो भी कभी ना कभी 0 रीच कर जाओगे और पॉइंट मिल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव गैप्स क्या रख सकते हो तुम, सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव गैप्स, रेदर देन फोकसिंग ऑन द मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव गैप। वो निकलता किससे? प्रोसेस में फोकस किया। अगर हर गैप 5 या 5 से कम है तो मैक्सिमम भी 5 या 5 से कम होगा। और क्योंकि पहले के सब फेल हो रहे थे, मतलब मैक्सिमम एग्जैक्टली 5 होगा। राम राम, मैक्सिमम ऑल ऑफ देम।
तो अगर अभी मैं आपको इसका ना थोड़ा कोड दिखाता हूँ, तो देखिएगा इस ब्रूट फोर्स कोड हमने लिखा है, इसका बाइनरी सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो आप, मैंने इनपुट लिया, मैक्सिमम डिफरेंस जो आ सकती थी लिया, गोल हमने चालू किया 1 से, आप देख सकते हो 1 घंटे पहले ही मैंने कोड लिखा अपने प्यारे हाथों से, गोल 1, गोल जा सकता है लेस देन इक्वल टू मैक्सी तक, गोल प्लस प्लस, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये गोल, ये मैक्सिमम, ये डिफरेंस आ सकता है कि नहीं गोल वाला। 2 से लेकर n तक जाओ, डिफरेंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस अपने गोल से कम है तो एक भी खंबा नहीं लगेगा, अगर डिफरेंस गोल से बड़ा है तो डिफरेंस बाय गोल, और अगर एग्जैक्टली डिवीजन में तो डिफरेंस बाय गोल -1 खंबे लगेंगे, टोटल खंबे सम में ऐड कर लिए। पूरा तामझाम करने के बाद अगर ये सम नंबर ऑफ खंबे रिक्वायर्ड इज लेस देन इक्वल टू k, मतलब यही आंसर है। लेस कैसे, जब हम लेस, जब हमारा गोल समझो 5 है, 5 का गोल लगाएंगे तो सम 3 आएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू k व्हिच इज 3, तो चल गया 5 आंसर है। जैसे ही आंसर मिल जाता है तो माइनस, पहले आंसर को -1 से इनिशिएट करते हैं, तो माइनस, अभी आंसर मिल गया तो गोल को मैक्सी +1 डाल दो, क्योंकि मैक्सी से ज्यादा डिफरेंस आ नहीं सकता, इसलिए मैंने मैक्स लिमिट मैक्सी डाल रखा है। अगर कौन से बिना कोई खंबे डाले मैक्सिमम डिफरेंस 11 है, अब खंबे डालोगे तो 11 से ज्यादा डिफरेंस तो कभी जाएगा नहीं, 11 से कम ही होगा, राइट, भले ही 0 खंबा हो यार, हो गया डन। तो बाइनरी सर्च क्यों लगेगा, देख वीडियो देख, ध्यान से देख। लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, अपन ने ये सारे नंबर ट्राई किए थे, राइट। क्या होता है ना, लेस देन इक्वल टू 1 जब हमने ट्राई किया तो ये नहीं चला, तो इसको फॉल्स बोल सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 2 ट्राई करा, नहीं चला, सारे डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू 2 नहीं हो पाए, सारे डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 नहीं हो पाए, सारे डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू 4 नहीं हो पाए भाई, सारे डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो पाए भाई, नहीं हो गए। जैसे ये ट्रू आता है, इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ करके तुम सारे एडजेसेंट डिफरेंसेस को 5 या 5 से कम बना लिए। अरे तो एक बार सक्सेसफुल हो गए तो अब जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में। मतलब अगर तुम सारे एडजेसेंट डिफरेंसेस को 5 या 5 से कम बना पा रहे हो, मतलब तुम सारे एडजेसेंट डिफरेंसेस को 6 या 6 से कम भी बना सकते हो। क्यों गाइस, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको आप सोच लेना। अब दिखती बात है ना, अगर तुमने सारे डिफरेंसेस को लेस देन इक्वल टू 5 बना दिया, तो सारे डिफरेंसेस को लेस देन इक्वल टू 6 बना रहे हो, तो वो तो बन ही जाएगा ना। अगर एक एक डिफरेंस 5 या 5 से कम है, तो एक एक डिफरेंस 6 या 6 से कम भी तो हुआ ना, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो वो जो नीचे के जो पॉइंट्स है वो सब ट्रू 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 रिटर्न करने चाहिए कि हाँ ट्रू, टिल मैक्स लिमिट ये सब ट्रू आ रहा है। ये जैसे एक ब्रेकिंग पॉइंट मिला, तो ये फंक्शन कैसा मोनोटोनिक है, पहले सारा फॉल्स 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 आ रहा है, एक पॉइंट पे चल जाता है, फिर हमेशा ट्रू रहता है। तो अपन को क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना एफ 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 फिर टी 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 टिल द मैक्स लिमिट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, हमको फर्स्ट अकरेंस ऑफ टी ढूंढना है इन द सीक्वेंस वेयर द इनिशियल नंबर्स आर एफ एंड देन ऑल द टी आर कमिंग। ये स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है कि आप अज्यूम कीजिए कि पहले बहुत सारे एफ है, फिर आप अज्यूम कीजिए कि सारे टी है। तो लीनियर सर्च से तो हम ढूंढ ही रहे कि पहली बार टी कब आएगा, बट बाइनरी सर्च भी तो कर सकते हैं। इसको लो लो, इसको हाई लो, और मिड पे चेक करो। मिड अगर फॉल्स आ रहा है मतलब टी राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि सारी टी लास्ट में आते हैं, और अगर मिड टी आ रहा है मतलब फर्स्ट टी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। समझ गए ना, समझ गए ना क्या चल रहा है। ये सब आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लो, आप ना मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करो अच्छे से। मेरे बच्चे ने कर करके गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्रैक हो गया, हैशिंग 2 पॉइंटर, बाइनरी सर्च, ये सब अच्छे से करो, अब काम हो जाएगा। आपको 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, डेली लाइफ ट्रेनिंग चाहिए, स्ट्रक्चर्ड 851 आवर कोर्स चाहिए जो 2026 के ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेट होता रहता है। तो आपको प्रोग्राम डिटेल्स आप चेक करो, सीट अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो, और प्री रिक्विजिट कोर्स अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं आपको ये ऑप्टिमाइज्ड कोड भी एक बार दिखा देता हूं गाइस। रियली लव यू ऑल, आई रियली केयर अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइस आप देख सकते हो सेम वही किया है, पर इस बार बाइनरी सर्च का फंक्शन यूज किया है, ठीक है, रेदर देन ट्राइंग ईच वैल्यू। पहले हम एक एक वैल्यू ट्राई करते हैं 1 से लेके मैक्सी तक, अब 1 से लेके मैक्सी पर बाइनरी सर्च लगा दे, लो 1 हाई मैक्सी, बार बार मिड वैल्यू ट्राई कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो हाई को मिड -1, नहीं तो लो को मिड +1। क्लियर। तो लाइक ये मैंने आपको अभी भी बताया कि समझो ये अपना लो है, ये अपना हाई है, और अपना मिड ये आ रहा है। अपना मिड क्या आ रहा है, मिड फॉल्स आ रहा है, मतलब ट्रू आगे होंगे, ट्रू ये वाली रेंज में होंगे। तो अभी मुझे ये अगर नहीं चल रहा है तो मिड को मुझे क्या अपडेट करना चाहिए, सॉरी, अब मुझे पहले लो मेरा ये था, ट्रू हाई ये था, और मिड ये फॉल्स आ गया, नहीं चला, ये नंबर पे नहीं चला, लेस देन इक्वल टू, ये समझो 4 था, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं चला, फॉल्स आ गया। तो मुझे ये रेंज में ट्राई करना है, तो लो पहले ये था, तो अब मैं लो को क्या करूंगा, लो इक्वल टू मिड +1। मिड 4 था, 4 नहीं चला, तो अब लो को डाल दिया 5, 5 से लेके 11 की कैटेगरी में ट्राई करूंगा, समझे। सिमिलरली अगर ये चल जाए तो हाई इक्वल टू मिड -1, इतना तो आप सोच सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलो स्टॉप से, राम राम, होपफुली आपको बहुत मजा आया।